and second is as a to show reason. Let's see example about purpose. Molest is a verb. So यदि आपको for के बगल में molest यानी verb को यूज करना है. One hot summer day, a crow became very thirsty. He flew in search of water, but he did not get water. He was going to die for want of water. Crow said, "Oh my God, I am feeling so thirsty." At last he saw a pitcher. He at once flew to it with great delight. The water was so low that the crow could not drink it. Then the crow tried to break the pitcher, but he couldn't. He tried again and again to overturn the pitcher, but he failed. But there was very little water at the bottom of the pitcher. He looked around and saw some pebbles lying nearby. He took the pebbles one by one and dropped them into the pitcher, and the water reached the neck of the pitcher. The crow drank water to his heart's content and flew away happily. So, the moral of the story is, where there is a will, there is a way. You know very well that for is a preposition, and the preposition takes either a noun or a gerund next to it. So first of all, I would like to suggest you should not compare English with Hindi. Always try to understand English in terms of sense. Let us understand about preposition for. So, for is used in many senses, but I will tell you only two senses. First is as a purpose and second is as a to show reason. Let's see example about purpose. I am hungry, so I am going for breakfast. Breakfast is a purpose, that's why I used for before breakfast. तो यहाँ पर for का आप हिंदी के लिए तो निकाल लेंगे, लेकिन जब मैं दूसरा सेंस पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर हिंदी का ये के लिए नहीं काम करेगा. तो इसलिए आप इंग्लिश को हिंदी से कंपेयर ना करें. Let's see another example. I went to market for vegetable. Vegetable is a noun and I have already told you for takes noun next to it. Okay, so here vegetable is a purpose. Let's see third example. Police arrested the boy for molesting the girl. So you can see molesting. Molest is a verb. So यदि आपको for के बगल में molest यानी verb को यूज करना है तो उसे ing फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि जो मेरा ing फॉर्म होता है वह मेरा जिरंड होता है. तो यहाँ पर for के बगल में क्या हो गया, molest का molesting. ओके, सो इसका हिंदी मतलब है पुलिस ने पकड़ा लड़की से छेड़छाड़ करने वाले लड़के को. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छेड़छाड़ का जो प्रॉब्लम था वो पहले किया गया, यानी कि छेड़छाड़ करने का काम पहले हो चुका था. उसके बाद पुलिस आई और उस लड़के को पकड़ी, क्योंकि उसने उस लड़की को पहले छेड़ दिया था.
इट मीन्स जो काम हो चुका था उस पर्पस के लिए आपको फॉर के बाद जिरंड यूज करना है। तो यहाँ पर मोलेस्टिंग मेरा एक पर्पस है और इसे शो करने के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। लेट्स सी फोर्थ एग्जाम्पल। आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। सपोज दैट आपसे एक व्यक्ति पूछता है कल तुम बाजार क्यों गए थे, तो आप क्या बोलेंगे? आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। इट मीन्स, इसका हिंदी है मैं बाजार गया सब्जी खरीदने के लिए। ओके, इट मीन्स जो काम हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है, और आप उस पर्पस के लिए अगर आप कहीं जाते हैं तब आपको इन्फिनिटिव लगाना है। तो यहाँ पर सब्जी खरीदना आपका एक पर्पस है, तो इसे दिखाने के लिए टू बाई लगाएंगे। ओके, क्योंकि जो काम हुआ नहीं है, ये देखिए सब्जी खरीदने का काम अभी हुआ नहीं था, आप खरीदने के लिए जा रहे थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि काम हो चुका होता तब आपको फॉर के साथ जिरंड का यूज लगाएंगे। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में है कि पुलिस अरेस्टेड द बॉय फॉर मोलेस्टिंग द गर्ल, यानी कि लड़के ने पहले उस लड़की को छेड़ा तब पुलिस ने उसे पकड़ा। लेकिन यदि आप इस एग्जाम्पल को फॉर के साथ बनाएंगे, मतलब कि आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, तो यह रॉन्ग माना जाएगा। आप भले ज़बरदस्ती बोल दें, पर अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसे रॉन्ग ही कहा जाएगा। ये आप बोल ही नहीं सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेट्स सी एग्जाम्पल अबाउट टू शो रीजन। So first example is he is famous because of his teaching style. So do you know, if you want you can also use because of in place of for, क्योंकि because of भी कारण दिखाने का काम करता है। That means for can be used as a alternative to because of. You can make this example with the help of for. He is famous for his teaching style. It means वह अपने टीचिंग स्टाइल के कारण से फेमस है। ओके, या फिर वह अपने टीचिंग स्टाइल के वजह से फेमस है। फॉर भी बिकॉज ऑफ की तरह ही काम करता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से फॉर मेरा प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ भी मेरा प्रीपोजिशन है। गॉट इट? सो लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। शी कुड नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ लाफिंग। यू कैन मेक इजली दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फॉर। ओके, हाउ टू मेक दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फॉर? She could not speak for laughing. You can you know very well for is a preposition. So for के बगल में जब भी आपको कोई एक्शन लेना है तो वह जिरंड फॉर्म में आएगा। और पिछले वाले में भी जो बिकॉज ऑफ था उसके बगल में जो लाफिंग था वह मेरा एक्शन था, जिस कारण हम उसे आईएनजी फॉर्म में लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है? जिरंड लेता है। लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल। यू हैव ऑलरेडी सीन दिस एग्जाम्पल इन दिस स्टोरी। ही वॉज गोइंग टू डाई फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर। इट मीन्स वह मरने वाला था पानी के अभाव के कारण। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर है टू शो रीजन का काम कर रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे वांट है इसका मतलब है कमी या फिर अभाव। और आपको पता होगा कि जो वांट है वह नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। जब यह नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी
या फिर किसी चीज़ का अभाव। want ऑफ वाटर मतलब कि पानी का अभाव। और जब यह वर्ब की तरह काम करता है तो किसी चीज़ की चाहत। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, इसका मतलब है मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। गॉट इट? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। डू यू नो what is the meaning of at once? So I will tell you. Okay, the synonym of at once, instantly, immediately. Okay, you can make this sentence like this: he immediately flew to it. He instantly flew to it. He at once flew to it का मतलब है वह तुरंत घड़े के पास उड़ा। इट का मतलब है यहाँ पर पीचर से। ओके, यहाँ पर इट जो है पीचर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है द क्रो ड्रैंक वाटर टू हिज हार्ट्स कंटेंट। गॉट इट? इट मीन्स कौवे ने जी भरकर पानी पिया। जो पानी पीने का काम था कौवे ने जी भरकर वह काम किया। तो उस जी भर के लिए हम एक ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, वह है मेरा टू हिज हार्ट्स कंटेंट। आप इस ईडियम का यूज करते हुए और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इस ईडियम को किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल ऑन दिस ईडियम। आई ईट मैंगो टू माई हार्ट्स कंटेंट। Next example, Ram played football to his heart's content. And next example, you are walking to your heart's content. So आप यहाँ पर जो हार्ट से पहले माई और हिज और योर है, इसको आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं। यदि खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो माई लगाएं, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज और योर लगाएं। गॉट इट?